Hello viewers, I Dr. S.V.K. Lal greet you all in my YouTube channel. Today we will study about Two Little Kitten. It is the poem composed by Jane Taylor. This is the poem about two little kittens. The first stanza says, two little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. The poet says that it was a stormy night. It means the night was not cool and normal, clear and normal. Rather, it was stormy. The wind was blowing fastly. In that very stormy night, two little kittens were quarreling with each other. Do you know what is the meaning of quarreling? Quarreling is the situation in which two or more than two people have a clash with each other orally. They argue at their own level but do not touch to each other and do not apply force against each other. And in the fight we may see that the force is being applied. In fight also we may find two or more people, but the force is not being applied. The force is applied in the fighting, and in the quarreling the force is not applied, the body is not touched, and in the fight one may beat another, one may use tools in the case of fighting. So we may say next, in second stanza, poet says, one kitten had a mouse and the another had none, and that was the way the quarrel began. Thus, in the second stanza, poet explains about the reason of quarreling. One kitten had a mouse and another had no mouse. It was why they were quarreling with each other. In third stanza, poet describes, I will have the mouse, said the bigger cat. You will have that mouse. We will see about that. Thus, in third stanza, we may find that each one was claiming about mouse. And in fourth stanza, the poet describes that it was a stormy night when two kittens began to fight. In the fourth stanza, poet describes about the old woman who was brooming and swept them both. In the fifth stanza, the poet describes about the ground which was covered with frost and snow, and they lost the mouse. And lastly, the poet describes that the mouse were being shivered. They wet with snow. They were as cold as ice. Ultimately, they concluded that it was much better to lie by the fire than to quarrel and fight. तो यहाँ हम लोग टू किटेन नामक पोएम को पढ़ रहे हैं। टू किटेन नामक पोएम का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो टू इसमें क्या है, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे दो बिल्ली के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपस में लड़ते हैं। तो यह कविता दो छोटे बिल्ली के बच्चों के बारे में है कि कैसे दोनों लड़ रहे हैं। एक बड़ी है तो दूसरी छोटी बिल्ली है। रात का समय था। रात कैसी थी, तो तूफानी रात थी जिसमें हवा बहुत तेज़ थी, और दो किटेन आपस में एक चूहा को लेकर झगड़ रहे थे। एक कहता था कि यह चूहा मेरा होना चाहिए, तो दूसरा कहता था कि वह बलपूर्वक इस पर अधिकार जमा लेगा। अब क्वेरलिंग के बाद, झगड़ने के बाद दोनों आपस में धक्का मुक्की भी करने लगे, एक दूसरे पर थूकने लगे, एक दूसरे को नोचने लगे। अब उसमें कवि कहता है कि एक कछुआ जैसा कठोर कवच खाल वाली एक बिल्ली
के बच्चे ने कहा कि यह चूहा मेरा है, तो दूसरी बिल्ली बोली कि नहीं, यह मेरा है। इस तरह से दोनों लड़ रहे थे कि बीच में झाड़ू और बुहारू करने वाली बूढ़ी महिला आती है और दोनों को बाहर कर देती है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद फिर ज़मीन बर्फ़ और ओला से, कोहरा से ढक गया था। इसी बीच उन दोनों ने चूहा को भी खो दिया। अब वे ठिठुर गए थे। अब तक वो बूढ़ी महिला ने फर्श को साफ कर लिया था। फिर उसने उनको आने से विरोध नहीं किया, उनको आने दिया। तब वे रेंगते हुए भीतर आए। अब वे चूहों की तरह शांत थे। वे बर्फ़ से भीग गए थे, उनका शरीर बर्फ़ की तरह सर्द हो गया था। अब उन्हें एहसास हो गया था कि इस तूफ़ानी ठंड रात में लड़ने से अच्छा था कि आग सेकना। ठीक है, अगर वो आग सेकते रहते तो ज़्यादा अच्छा था बनिस्पत इसके कि वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको देखिए, इसको पहले प्रोनाउंसिएट कीजिए, हर एक स्टांजा को, पोएट को कैसे पढ़ा जाता है उसको समझिए। आप फिर उसका माने लगाइए। कुछ जो वर्ड सब है उसका मीनिंग सब देखिए डिक्शनरी के माने से। कुछ टेक्निकल वर्ड है जैसे क्वेरलिंग, और दूसरा वर्ड है फाइट। तो क्वेरल में और फाइट में क्या अंतर है, यह मैंने आपको बताया। क्वेरल का अर्थ होता है कि मतलब बिना बल प्रयोग किए हुए, धक्का मुक्की किए हुए, बिना शरीर को स्पर्श किए हुए लड़ाई करना, आर्गूमेंट देना, एक दूसरे के विरुद्ध में अपना आर्गूमेंट देना कि मैं सही हूँ, मेरा कहना सही है। तो इस तरह का जो होता है तो क्वेरलिंग होता है। जबकि फाइटिंग में क्या होता है कि फाइटिंग में होता है कि एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग करना, धक्का मुक्की करना। तो फाइटिंग में और क्वेरलिंग में ये अंतर है। इसको आप देखिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको टेक्स्ट के मदद से पढ़ कर के बताएंगे, फिर उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। यहाँ पर फिर हम इसको लिख दिए हैं, इसको आप देखिए। 2 little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. One had a mouse and the other had none, and that was the way the quarrel began. I will have that mouse, said the bigger cat. You will have that mouse? We will see about that. I will have that mouse, said the tortoise shell, and spitting and scratching on her sister and fell. I have told you before, it was a stormy night when these 2 kittens began to fight. The old woman took the sweeping broom and swept them both right out of the room. The ground was covered with frost and snow. They had lost the mouse and had nowhere to go. So they lay and shivered beside the door till the old woman finished sweeping the floor. And then they crept in as quiet as mice, all wet with the snow and as cold as ice. They found it much better that stormy night to lie by the fire than to quarrel and fight. तो यहाँ हम इसको देखेंगे कि हर एक चीज़ का क्या माने होता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। इसको देखिए, इसको किसने कंपोज किया है उसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले है कि 2 little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. 2 छोटे छोटे किटेन आपस में लड़ना प्रारंभ करते हैं एक स्टॉर्मी नाइट को, मन तूफ़ानी रात जबकि हवा बहुत तेज़ बह रही है, उसमें 2 किटेन आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। पहले झगड़ते हैं फिर लड़ते हैं। तो कौन चीज़ को लेकर के, तो एक चूहा को लेकर के। वन हैड ए माउस एंड द अदर हैड नन एंड दैट वाज द वे द क्वेरल बिगन। एक के पास चूहा है, दूसरे के पास नहीं है। यही कारण है कि झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। आई विल हैव दैट माउस, सेड द बिगर कैट। यू विल हैव दैट माउस, यू विल सी अबाउट दैट।
हमारे पास चूहा है। तुम्हारे पास चूहा है, बड़ी बिल्ली ने कहा। यू विल हैव दैट माउस, तुम्हारे पास चूहा है। हम देख लेंगे, हम देखते हैं कि कैसे ही तुम्हारा हो जाता है। आई विल हैव दैट माउस सिर द टोर्टाइज सेल। ये कछुआ के खाल जैसे कठोर खाल वाली बिल्ली ने कहा कि मुझे ये चूहा चाहिए। एंड स्पाइटिंग एंड स्क्रेचिंग ऑन हर सिस्टर सी फेल। उसके बाद वो जो है सो एक दूसरे पर थूकने लगती है, नोचने लगती है और फिर अपने बहन पर टूट पड़ती है। I have told you before it was a stormy night when these two kittens began to fight। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये स्टॉर्मी नाइट था जिसमें दोनों लड़ रहे थे। The old woman took the sweeping broom and swept them both right out of the room। उसके बाद वो साफ़ करने वाली बूढ़ी महिला आती है और दोनों को बाहर कर देती है। उसके बाद बर्फ़ से फर्श भर जाता है। उसके बाद फिर दोनों को आभास होता है कि इससे अच्छा था लड़ाई करने से करके ठिठुरने से और चूहा को खोने से अच्छा था कि आग सेका जाए और आराम किया जाए। ठीक है, अब देखिए इसको हम प्रोनाउंसिएट करके आपको बताते हैं। टू लिटिल किटेंस वन स्टॉर्मी नाइट बिगेन टू क्वेरल एंड देन टू फाइट। दो छोटे बिल्ली के बच्चे तूफ़ानी रात में जबकि हवा तेज़ बढ़ रही थी झगड़ना प्रारंभ करते हैं। एंड देन टू फाइट, और उसके बाद वो धक्का मुक्की करने लगते हैं। वन हैड ए माउस एंड द अदर हैड नन। एक के पास चूहा है और दूसरे के पास नहीं है। एंड दैट वाज द वे द क्वेरल बिगन। और यही कारण था कि दोनों के बीच झगड़ा प्रारंभ हो गया। आई विल हैव द माउस सेड द बिगर कैट। बड़ी बिल्ली ने कहा कि आई विल हैव दैट माउस, मुझे वो चूहा चाहिए। यू विल हैव दैट माउस, तुम्हारे पास चूहा है। वी विल सी अबाउट दैट, हम लोग उसको देख लेंगे। आई हैव टोल्ड यू बिफोर इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये स्टॉर्मी नाइट था। दो मामले में था, एक तो मतलब हवा तेज़ बह रही थी उस मामले में स्टॉर्मी था, दूसरा दोनों जो लड़ रहे थे इस मामले में भी स्टॉर्मी था। व्हेन दिस टू किटेंस बिगेन टू फाइट, जब वे तूफ़ानी रात थी जिसमें वो दोनों किटेन आपस में लड़ रहे थे, बिल्ली का बच्चा आपस में लड़ रहे थे। द ओल्ड वुमेन टुक द स्वीपिंग ब्रूम। बूढ़ी महिला ने, जो सफाई करने वाली महिला थी, उसने साफ़ करने वाले जो ब्रूम होता है वो जिसमें एक लाठी बंधी हुई होती है वो स्वीपिंग ब्रूम होता है, साफ़ करने वाला झाड़ू, उससे उसने उन दोनों को भगा दिया, स्वेप्ट कर दिया, रूम के बाहर कर दिया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। अब ज़मीन जो है सो कवर हो गया था, ढक गया था, आवृत हो गया था। कौन चीज़ से? तो कोहरा से और बर्फ़ से। दे हैड लॉस्ट द माउस। अब वो चूहा भी लूज कर चुके थे। एंड हैड नो वेयर टू गो। अब उनको चूहा खो ही चुके थे, बाहर ठंड ही था, तब उनको कहीं जाना नहीं था। सो दे ले एंड शिवर्ड। और इसीलिए वो लेट गए और ठिठुर रहे थे। बिसाइड द डोर, दरवाजे के पीछे। टिल द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर। तब तक वो महिला स्वीपिंग को समाप्त कर चुकी थी, झाड़ू बहारू, फर्श के झाड़ू बहारू का काम पूरा कर चुकी थी। एंड देन दे क्रेप्ट इन। तब वो रेंगते हुए अंदर मन आए। एज क्वाइट एज माइस। वो ऐसे शांत थे जैसे कि चूहा शांत रहता है। ऑल वेट विथ स्नो। वो पूरा भीग चुके थे बर्फ़ से। एंड एज कोल्ड एज आइस। और बर्फ़ की तरह सर्द पड़ गए थे, ठंड हो गए थे। दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर देन टू क्वेरल एंड फाइट। अब उन्होंने पाया कि इससे अच्छा था, इस तूफ़ानी रात में लड़ने से अच्छा था कि वो आग सेकते। ठीक है, इस हिसाब से ये हो गया। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन आंसर में क्या है कि ट्रू फॉल्स करना है, तो जो ट्रू है उसको ट्रू कर दीजिए और फॉल्स है तो उसको उसके पीछे एफ लिखिए, ट्रू के आगे टी लिखिए
जो गलत है उसके आगे एफ लिखिए, और जो गलत है क्यों गलत है तो उसका भी आपको रीजन देना है। तो B3 है, उसका पहला है द टू लिटिल किटन स्टार्टेड क्वेरलिंग ओवर ए माउस, तो ये ट्रू हो गया, तो टी लिखिए। वन ऑफ द किटन वाज बिगर देन द अदर, एक किटन बड़ा था दूसरे से, तो ये इसमें टी लिखिए। द टू किटन वेयर थ्रोन आउट ऑफ द रूम बिकॉज दे वेयर अनएबल टू कैच द माउस, ये दो किटन को घर से बाहर कर दिया गया था क्योंकि ये चूहा पकड़ने में सक्षम नहीं हुए थे, तो इसका ये नहीं है, वो तो झगड़ रहे थे इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। तो सही आंसर होगा द टू लिटिल किटन्स वेयर थ्रोन आउट ऑफ द रूम बिकॉज दे वेयर क्वेरलिंग ओवर द माउस। उसके बाद चौथा ऑप्शन है द वेदर आउटसाइड वाज ब्राइट एंड सनी, तो इसमें लिखिए आगे एफ फॉल्स, क्योंकि वेदर कैसा था तो कोल्ड और स्टॉर्मी था। द वेदर आउटसाइड वाज कोल्ड एंड स्टॉर्मी। उसके बाद है द ओल्ड लेडी परमिटेड द किटन टू कम इनसाइड, तो इसके आगे टी लिखिए, ट्रू है ये। उसके बाद द किटन स्टार्टेड फाइटिंग अगेन आफ्टर कमिंग इनसाइड द रूम, तो ये फॉल्स होगा, वो दोनों शांत पड़ गए थे चूहों की तरह। तो इसमें हम लिखेंगे द किटन स्टॉप्ड फाइटिंग आफ्टर कमिंग इनसाइड द रूम, वो जो बिल्ली के बच्चे थे घर में आने के बाद वो शांत हो गए थे। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिफोर हाउ डिड द टू किटन गेट पनिश्ड फॉर दियर ग्रीड, अपने लालच के लिए किस तरह से पनिश किए गए। द किटन वेयर थ्रोन आउट ऑफ द रूम इन ए कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, ठीक है। उसके बाद है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, वी शुड नोट, तो हम लोग इससे क्या लेसन लेते हैं, हम लोग ये लेसन लेते हैं कि वी शुड नोट क्वेरल ओवर स्मॉल थिंग्स एंड लिव टुगेदर पीसफुली, हम लोगों को छोटे छोटे चीज़ों पर नहीं लड़ना चाहिए और एक साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए। उसके बाद है B6 में कि द फर्स्ट स्टंजा ऑफ द पोएम सेज टू किटन्स वन स्टॉर्मी नाइट बिगेन टू क्वेरल एंड देन टू फाइट, तो इसमें क्वेरल और फाइट में अंतर बताने के लिए कहता है। तो क्वेरल होता है इट इज़ द सिचुएशन इन विच टू और मोर पीपुल आर्गू अगेंस्ट ईच अदर, दे डू नॉट यूज़ फोर्स और टच दियर बॉडी। फाइट में होता है व्हेन टू और मोर पीपुल क्लैश टू डिफीट वन अनदर बाय अप्लाइंग फोर्स और बाय यूजिंग एनी आर्म्स और टूल्स। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है एज क्वाइट एज माइस, चूहे के जैसा शांत, एज वाइट एज स्नो, बर्फ़ के जैसा सफ़ेद। उसके बाद फिर हम देखेंगे सुटेबल कंपेरिजन फॉर द फॉलोइंग, उसमें क्या होगा एज सॉफ्ट एज, तो एज सॉफ्ट एज क्या होगा फर के जैसा या कॉटन के जैसा। एज लाइट एज तो फीदर हो जाएगा। एज ब्राइट एज ब्राइट एज तो उसमें सन होगा। एज फास्ट एज तो लियोपोर्ड, चीता कितना फास्ट होता है, फुर्तीला होता है, तो उसमें होगा एज फास्ट एज में होगा लियोपोर्ड। एज लॉन्ग एज तो जिराफ। एज हार्ड एज तो उसमें स्टोन। एज ब्लैक एज तो कोल, इसमें आप दूसरा शब्द भी चयन करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइमिंग वर्ड, तो नाइट फाइट राइट, कैट दैट मैट, फिल सेल विल, ब्रूम रूम ग्रूम, स्नो गो एगो, डोर फ्लोर स्टोर, माइस आइस राइस। इस हिसाब से इसको आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इसमें और भी अलग दूसरा शब्द का भी चयन करके इसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको कीजिए कि राइमिंग वर्ड होता है कविता के तरह जिसके अंत में एक ही तरह का अल्फ़ाबेट रहता है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, हालांकि वर्ड सेम नहीं होता है, माने भी अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से देखिए। थैंक यू फॉर सीइंग दी वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।